A. Rahim. A. Rahim. Take your seat. Take A. Rahim. A. Rahim, please. Go ahead. Let's transact business. A. Rahim. A. Rahim. 267 and point of order. Honorable members, 1 second. One second. Please take. What I find is, we have used a novel mechanism of disruption. One disruption is 267. Second disruption is point of order. Shri A. Rahim, please. Sir, thank you, sir. Thank you for this opportunity. Sir, now I am standing here in this guest house for on behalf of entire young men, women, and trans of young youth. Sir, I am standing here. I am trying to speaking here. I am trying to speaking here on behalf of entire job aspirants in the country. Sir, I would like to bring your valid attention to a data. Sir, data released by the government's National Statistics Office NSO, Index of Industrial Production IIP, slumped to a 26-month low of -4% in October on the back of a contraction in manufacturing and consumer goods. Sir, this is an alarming indication. Sir, this is a composite indicator. IIP is a composite indicator. Sir, this slump in IIP is extremely alarming, as it means that the industrial sector is facing a major crisis. Sir, this is my point. Sir, as we know that the industrial sector is capable of providing gainful long-term employment. Sir, otherwise this, how can we provide the employment for the youth? Sir, then I would like to come to Make in India. The treasury benches and the Honorable Prime Minister and all of the BJP party trying to propagating that the Make in India first. Then they are trying to say that Atmanirbhar Bharat. Sir, Make in India is there, Atmanirbhar Bharat is there, but the indication provided by NSO is very clearly said that the IIP, the Index of Industrial Production, slumped to a alarming situation, slumped to a very extremely alarming situation. Sir, my point is that, sir, what is happening here? See, sir, this statistics is clear indicator of our unemployment. Sir, otherwise much of these jobs would be considered unemployment. Sir, and underemployment is also. So I urge the government of India should interfere this matter, and to control the unemployment and underemployment in the country. Good, sir. Dr. Fozia Khan. Thank you, Chairman, sir. No, sir. Please, sir. Please. No, sir, please. Fozia Khan, I'll take the listed business. Please, Fozia Khan. Nothing will go on record. I have called Fozia Khan. Fozia Khan will please speak. But here, please, Sanjay Singh, please, settle down. Please, settle down. Fozia Khan, please take the floor. Sir, my matter of urgent importance is on acid attacks, sir. I have to control the proceedings. Sir, we have to go by listed business. Is a bit of acid to cause irreparable damage and transform our body
into a mangled heap of bones and flesh. Please. Charge beyond Please. recognition, sir. Mr. Manoj Jha will see me in my chamber. Manoj Jha will see me in my chamber. बैठ जाइए. फौजिया खान. बैठिए. फौजिया खान. Sir, No, please. see me in my chamber. See, please, sir, please put the Fauziya house Khan. in order. I would like to Please, Fauziya raise Khan. my... Sir, all it takes Please take your is seat. a bit of acid Take your seat. to cause irreparable Take your damage seat. Take note of the memo. and to transform a face or a body into a heap of bones and flesh, charred beyond recognition, sir. Sir, it's a heinous crime driven by the most malicious intents. A majority of reported cases of acid attacks, sir, are against young women of marriageable age. Most of them who refuse a proposal for marriage or who refuse to enter into a relationship or withdraw from a relationship. Sir, despite the existence of laws, the crime of acid attacks continue unabated. The reason is that acids can be procured easily as there is laxness in implementations of the regulations. It's the implementation that is important, sir. There is a high prevalence of illegal sale of acid. Sir, recently on the 14th of December, a girl in Delhi was attacked by 3 assailants in Dwarka on her way to school by some acid-like substance. The accused have been arrested and they had allegedly procured the substance through Flipkart, an e-commerce website, paying for it through his e-wallet, sir. Sir, the nature of crime remains the same, but the modes are changing. While browsing for hydrochloric acid on e-commerce website, the search shows a brownish plastic substance, a bottle containing toilet cleaner acid, sir, for merely 189 rupees. On another e-commerce website, a 500 ml hydrochloric acid is being sold for 600 rupees, sir. Hence, I request the government to implement... Thank you. श्री राजमणि पटेल. माननीय सभापति जी, मैं बहुत माननीय सभा I have already take your seat. यार लाठी चार्ज हुआ है. I have asked honorable member to see me in my chamber. There are ways to find a way out. Shri Rajmani Patel. Please maintain order in the house. We are all dignified people. I have given my stand. I quite appreciate. I have noted it. I have yielded. Mr. Jha, you are misusing the platform of this house now. Don't do it. Please don't do it. Don't do it. Shri Rajmani Patel. माननीय सभापति जी, Rajmani Patel. Rajmani Patel. ऑर्डर में तो आए. बैठिए. राजमणि पटेल. माननीय सभापति जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई अयोग्य नियुक्ति को निरस्त किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं. इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र है, जिसके गुणवत्ता एवं मेरिट की पहचान है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रोफेसरशिप के 10 वर्ष के कार्य का अनुभव मांगा गया था. माननीय सभापति महोदय, जिसमें 3 प्रत्याशी जो सभी योग्यता पूरी करते थे उनको न ले करके
अर्हता पूरे न करने वाली प्रत्याशी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के नियुक्त उप कुलपति के पद पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई है, जो पूर्णतः अवैध है, जिनको 10 वर्ष का अनुभव नहीं है और 10 वर्ष का अनुभव न होने के बावजूद माननीय सभापति महोदय सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात, उत्तराखंड विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों को हटाया गया है, लेकिन इलाहाबाद के कुलपति को नहीं हटाया गया है। माननीय सभापति महोदय, उच्च न्यायालय में विक्रमानाथ जी न्यायाधीश हैं और उनकी पत्नी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। इस वजह से अयोग्यता होने के बाद जो नहीं हटाया गया है, बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इसको लेकर के और छात्र संघ की बहाली को लेकर के अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, गोली चार्ज किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत है, ये जो हमारे भारत के भविष्य है, उन नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं माननीय सरकार से, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अयोग्य होने के बाद क्यों नहीं हटाया गया, जबकि इन्हीं न्यायाधीश के द्वारा माननीय सभापति महोदय बिजली विभाग के 10 वर्ष के अनुभव से कम रहने वाले कर्मचारियों को जिस न्यायाधीश के आदेश से हटाया गया हो और वही न्यायाधीश की पत्नी की कुलपति नियुक्त की गई हो, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्काल इनको हटाया जाना चाहिए और छात्रों को मुकदमा वापस लेना चाहिए और छात्र संघ को बहाली की जानी चाहिए। बहुत अन्याय हुआ माननीय महोदय उस नौजवान के ऊपर। सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान एक विशेष और महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के इन जिलों में बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के इन जिलों में वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या अनुपात को देखते हुए इन जिलों में एक भी शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिससे इन क्षेत्र के मेरे आदिवासी गरीब भाइयों और बहनों को आधुनिक चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी जिले से आता हूं। यहां के मेरे आदिवासी भाई बंधु पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं, जिनका जीवन पूर्णतः कृषि और कृषि मजदूरी पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र के लोग कुछ आनुवांशिक बीमारियां, गंभीर बीमारियों से जैसे सिकल सेल से प्रभावित है। आज़ादी के अमृत काल के 75 वर्ष हो गए हैं। इन आदिवासी बाहुल्य जिलों में एक भी शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिससे यहाँ पर उत्पन्न होने वाली गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध कार्य नहीं हो पा रहे हैं। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अन्य महानगरों की ओर जाना पड़ता है, जिससे इन गरीब आदिवासी लोगों के लिए कष्टदायी एवं पीड़ादायी होता है। कई बार पैसों की कमी एवं समय पर उपचार न मिलने के कारण जान से हाथ धोना पड़ता है। जनजाति क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर नहीं होने के कारण न जाने कितने ही भाई और बंधु आनुवांशिक बीमारियों का इलाज समय पर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण जनता द्वारा लंबे अरसे से उक्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की मांग निरंतर की जा रही है, जो कि अभी तक लंबित है। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी भाइयों और बहनों का विकास हो रहा है। मुझे आशा है कि इन आदिवासी जिलों को मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। बड़वानी जैसी आकांक्षी जिले मध्य प्रदेश में अन्य जिले भी है, वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज की मांग करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, यदि इन आदिवासी जिलों में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे तो आम जनता के लिए परिणाम बहुत लाभकारी होंगे तथा स्वास्थ्य व चिकित्सा की दृष्टि से वरदान भी साबित होंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि आम जनता की मांग को आपके समक्ष रखते हुए मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के इन आदिवासी जिलों सहित मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भाइयों और बहनों के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने का मैं निवेदन करता हूं। बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। मिस डोला सेन। Thank you, Chairman, sir, for giving me chance to speak on urgent need to address the delay in funds disbursal under various central schemes as 0 hour submission. There is an urgent need, sir, for intervention from the Union government
for the disbursal of funds under MGNREGA, PM Awas Yojana, PM Gram Sadak Yojana. MGNREGA पे सर वेज भी बाकी है जो गैर कानूनी भी है, और बांग्ला में और हर एक अपोजिशन गवर्नमेंट की 1 लाख करोड़ से ज्यादा भी डेवलपमेंट फंड बाकी है, वो भी मिनिस्ट्री को देना चाहिए। हम एक बात और करना चाहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोपोर्शनली कंट्रीब्यूट करना है ये सब स्कीम पर, तो क्यों हम ये इसको नेम नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना और केंद्र राज्य स्कीम, ये बाय द वे। और अभी हम बोलना चाहेंगे कि दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है सर कि NHRC को हम देखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, अभी बिहार जा रहा है, बंगाल भी जा रहा है, लेकिन कभी यूपी और ये में नहीं जाते हैं, गुजरात में। इसीलिए ऑन प्रोटेस्ट laying my paper for 0 hour submission, we are trying to work out this 0 hour submission. Work out बोले छी। श्रीमती संगीता यादव। माननीय सभापति जी, स्टार्टअप के द्वारा कैसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल रहे हैं और किस तरह इससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, और इन स्टार्टअप में महिलाओं के लिए और क्या किया जाए, इस तरह मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्टार्टअप माननीय सभापति जी, स्टार्टअप एक नवाचार और उद्यमशीलता का पुनर्जागरण है। यह युवाओं की एक नई सोच है, जिन्होंने ये बताया कि हम रोजगार मांगेंगे नहीं, हम रोजगार देंगे। माननीय सभापति जी, पहले हम लोग सुनते थे कि जो आहट होती है, दरवाजे पे आहट होती है अवसर की, वो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन यह स्टार्टअप ने यह बताया है कि अगर आप आहट ना सुन पाए तो नया दरवाजा ही बना ले। स्टार्टअप एक प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को उनकी उद्यमिता को आगे बढ़ाने के रूप में कार्य करता है। यह एक चुनौती भी है जो उद्यमियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अंततः एक समस्या को हल करने में मदद करती है। स्टार्टअप एक सहायता है जो नए उद्यमियों को उनकी शुरुआत के दौर में बुनियादी सहयोग प्रदान करता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मैन पावर हो। आज भी जब हम रितेश अग्रवाल, ओयो के संस्थापक, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के संस्थापक, वाईजू रविंद्र, वाइज के संस्थापक का नाम ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सुनते हैं तो लोगों के दिल में गर्व की भावना पैदा होती है, और हर भारतीय यह चाहते कि क्या इस सूची में अगला नाम मेरा भी हो। माननीय सभापति जी, कुछ आधिकारिक आंकड़े मैं आपके माध्यम को बताना चाहूँगी। 2014 में भारत में 70,000 ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए थे। 2020 में 2.5 लाख से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए हैं। 2015 में वर्ल्ड इनोवेशन में भारत 81वें स्थान पर था, अब यह 46वें पर है। जैसा कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि अभी भारत लर्निंग मोड में है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत 2016 में महज 500 स्टार्टअप से बढ़कर 2021 में 61,000 स्टार्टअप तक पहुंच गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों 55 क्षेत्रों में और 635 जिलों में फैला हुआ है। चूँकि एक मैं महिला सांसद हूँ, तो महिलाओं के स्टार्टअप के बारे में आप सदन को कुछ अवगत कराऊंगी, उनकी कुछ मांग भी मैं रखना चाहूँगी। आगे महिलाओं के लिए स्टार्टअप और उद्यमिता के आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 14% व्यवसाय महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जाते हैं। लगभग 58% महिला उद्यमियों की उम्र तो मात्र 20 और 30 वर्ष के बीच में है। जब उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, उसमें से लगभग 73% एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए के राजस्व का ये रिपोर्ट भी कर रही हैं। इनमें से 57% महिलाओं ने अकेले यानी बिना किसी अन्य सदस्य के काम की शुरुआत की है, और 35% महिलाओं का सह संस्थापक है। और मैं बस एक लाइन कहना चाहूँगी, रोजगार के बारे में जो लोग कहते रहते हैं, उसमें एक कविता कह करगी कि रोजगार बहुत ज़्यादा है। प्लीज खत्म हो गया, प्लीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। श्री अजय प्रताप सिंह जी, 1 मिनट का समय है, आप जल्द पूरा। निर्माण की जा रही है, उसमें भू अर्जन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। 12 सालों से रेल लाइन का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक एक भी गांव 100% रूप से भू अर्जन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसी कमिश्नर लेवल के अधिकारी की नियुक्ति करके इसकी मॉनिटरिंग कराएं। रेल विभाग ने 11/11/2019 को एक आदेश जारी करके इसके प्रभावितों को नौकरी देने से इनकार कर दिया है।
या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। मेरा आग्रह है कि 11/11/2019 से पूर्व जिनकी ज़मीनें ली गई हैं उनको नौकरी दी जाए, जिनका मेडिकल हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, उनका पदस्थापना किया जाए। धन्यवाद सभापति। Question number 136.